my screen. Screen. Okay, is this visible to you? Theory of orthographic projection. Yes, sir, it's visible. Okay, so let's start. Um, Today we will discuss uh, what is projection, types of projection, and then we will mainly focus on theory of orthographic projection. We will see the scenario that there are two types of orthographic projection. One is first angle projection and the other is third angle projection. So let's start with projection. So basically projection is a method that is used to describe shape by process of causing an image to be formed by rays of sight taken in particular direction from an object to a picture plane. So whenever rays of light or rays of sight that comes from a particular direction from an object and that hit the picture plane, so the image is formed. This method is known as projection. So in engineering drawing and graphic, it is a method in which shape is formed by now. How the shape will be formed? By the process of causing an image to be formed by rays of sight taken in a particular direction from an object to picture plane. When you are going to take rays of sight in a particular direction from object and that hit the picture plane, so a shape is formed. This process is known as projection. उर्दू में सिंपल अल्फाज में ये है कि जब भी रेज ऑफ लाइट्स आती हैं, ये जो बंदा देखता है ठीक है ऑब्जेक्ट को, तो वो रेज जाती हैं ऑब्जेक्ट से टकराती है और ऑब्जेक्ट को टकराने के बाद उसकी वही रेज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके किसी भी पिक्चर प्लेन पे पड़ती है तो उसका एक इमेज बनता है, ठीक है ना। और या उससे एक इमेज बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। आगे स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह आप अगर देखें तो अगर रेज ऑफ साइड्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साइड से टकराती हैं, ठीक है ना। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लें और उस ऑब्जेक्ट के एवरी कॉर्नर को या एवरी पॉइंट को प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्ट मींस के उसको रेज ऑफ साइड्स को या रेज ऑफ लाइट्स को जो है वो हिट करें एक पिक्चर प्लेन पे, तो वो पॉइंट प्रोजेक्ट हो जाता है उस प्लेन पे, ठीक है ना। नाउ बाय अरेंजिंग ऑल दीज पॉइंट इन अ प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है ना, जब आप इस सब पॉइंट्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं, सो यू विल गेट द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज projection. Clear? And now we have three type of projection. The first one is orthographic projection, the second one is oblique projection, and the third one is perspective projections. Clear? Let's see its definition and then we will go to the next slides in which you will be able to easily understand orthographic projection, oblique projection, and perspective projection. So remember that three things are necessary for projections. The first thing is observer, the second thing is object which you are going to project, and the third thing is picture plane or the plane over which you are going to project that object. So again I am repeating that three things that are necessary for projection. The first one is observer or rays of sight, you can say rays of sight. The second thing is object, and the third thing is picture plane or plane over which you are going to project that object. So the first one is the type of projection. The first one is orthographic projection. Now in orthographic projection, if the rays of sides or if the rays that are coming from object to a picture plane that is hitting that picture plane perpendicular, so the projection form will be known as orthographic projections. Again, if the rays are perpendicular to the picture plane, the projection is known as orthographic projection. Now, the rays of light that are coming from object to picture plane, and it is mentioned that it must be perpendicular. So, the projection performed will be orthographic projection.
Now remember that the rays of lights that are coming from object to picture plane, these are also known as projectors. Again, I am repeating, the rays of light coming from object to picture plane, that might be at certain angle, that might be perpendicular, whatever it is, but these rays of lights are coming from object to a picture plane are known as projector. So you can easily define orthographic projection like that. If projectors are perpendicular to the picture plane, the projection is known as ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. जब भी जो रेज ऑफ लाइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट से आती हैं और पिक्चर प्लेन को हिट करती हैं. नाउ अगर मैं आपको एक मिनट, लेट मी टर्न ऑन माय कैमरा एज वेल. अच्छा, ये देखें, ये पिक्चर प्लेन है, ठीक है ना, ये इस तरह है, ठीक है ना, और ये रेज ऑफ लाइट आ रही हैं. जब भी ये रेज ऑफ लाइट आके पिक्चर प्लेन पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़े, या अगर आप कहें कि ये मोबाइल है, ठीक है ना, और ये प्लेन है, पिक्चर प्लेन है, ठीक है ना, और रेज ऑफ साइट आ रही हैं. अब रेज ऑफ साइट जब आती हैं और इस प्लेन पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ठीक है ना, तो जो प्रोजेक्शन होती है दैट इज नोन एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. अब ये नहीं है कि सिर्फ एक रेज ऑफ लाइट आती है, शेप की जितने भी प्रेफरी है उन सब से अगर आप रेज ऑफ साइट को प्रोजेक्ट करें पिक्चर प्लेन पे, ठीक है ना, तो काफी सारे पॉइंट्स आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएंगे दैट पिक्चर प्लेन पे. अपॉन जॉइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, you will get the shape of that object. In next few slides you will be able to understand that. Clear? Yes, sir. So if the projectors are perpendicular to the picture plane, that is known as orthographic projection. The second one is oblique projection. Now if the rays of lights are, you can say, the projectors are at angle to the picture plane, the projection will be known as oblique projection. Now in this scenario you can say that this is the picture plane, this is the picture plane, and the rays of sight that are coming are not perpendicular. You can say that it will be at certain angle, it will make certain angle with the picture plane. Or if this plane this plane is at certain angle and the light is straight, so again it will make an angle between these two plane and projectors. So that type of projection will be known as oblique projection. The things will be clear in next few slides, okay, but just remember that if the rays are at angle to the plane, the projection is known as oblique projection. And the third one is perspective projection. Now what is perspective projection? Perspective projection is that if the rays are taken to a particular station point, for example, if you are going to project any object from a specific point, from a single point, and you are going to, there is an object in front of you and you are going to project it from a particular point, so all rays will generate from this particular point and that will hit the picture plane, so an image will be formed. This type of projection is known as perspective projection. Let's move to the next slide and it will be further clear to you. Okay, now this is the example of orthographic projection looking through plane. Now first clear that this is orthographic example of orthographic projection looking through plane. Now looking through plane means that plane is in between observer and object. The observer will be here, clear, this is the plane and this is object. So looking through plane means that plane will be in between observer and object, and for that purpose in this scenario the plane must be transparent, because if the plane is not transparent, so the observer may not look that view due to non-transparency.
But if it is transparent, so observer can easily project this shape to that plane. Now you can see that all these are the projectors coming from the rays of light coming from object and hitting the plane. Now you can see that all these rays originating from object and hitting the picture planes, that must be perpendicular, and also they will be parallel to each other. If they are parallel to each other, then what will happen? If they are all parallel to each other and they will hit a plane, clear? So that will be perpendicular to that plane. So if the rays of sides that are originating from object and hitting the picture plane, so image will be formed, and that is known as projection plane. You can see that this point is projected to this, you will get a single point. Again, this point will be projected to this, you will get a single point. Similarly, this point, this, and similarly this point. So what happen? You will have to join this point in a sequence. Let's say you will start from joining this point with this point. Again, you will join this point with this point with this point with this point, and so on, and you will get a complete image of that object which is in front of you. So this type of projection is known as orthographic projection. You can see that in bracket it is written that plane between observer and object. Now there is another example of orthographic projection. Now in this scenario, it is written that object between observer and plane. Now this is object, here is observer, clear, and this is picture plane, clear. Now the rays of sight coming from observer and object and hitting the picture plane. These, you can see that these, all these projectors are parallel to each other and they are hitting this picture plane perpendicularly. Obviously it is a picture and tilt view, so you cannot, you will not be able to understand that whether it is perpendicular or not, but later you will see that all these projectors hitting will be perpendicular to this plane, so an image will be formed. This is known as orthographic projection. Clear? Any question till now? सर ऑब्जेक्ट और Yes, sir. ऑब्जेक्ट और व्यू जो देखने वाला है वो बताते हैं एक दफ़ा कहाँ कहाँ पे बच्चे इसी देखें, एग्जांपल दो सिनेरियोज हैं, इसमें एक लिखा हुआ है प्लेन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. सो इन दिस केस ये देखें, ये प्लेन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, जो कि शो नहीं किया हुआ, बस रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही हैं, ठीक है ना. सो ऑब्जर्वर यहाँ है, ये प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट है. सो प्लेन इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. नाउ इन दिस केस it is clearly mentioned that object between observer and plane. So you must be able to understand this sentence that object is between the plane and observer. So it means that observer is here. Clear? यस सर. Okay. Now coming toward oblique projection. Now in oblique projection, I have told you that projectors will be at certain angle to the picture plane, or rays of sight coming and hitting the picture plane will be at certain angle. So here there are also two scenarios, plane between observer and object. Now this is the plane, this is the object, and observer will be here. Observer is looking from here. Okay, now you can see that this plane is at now at certain angle, because how you can say that this plane, now in this example you will see that this edge and this edge, they are equidistant from the object. It means that this edge is parallel to this lower edge, or the distance between these two edges is constant, means these rays are perpendicular to this picture plane. Now in this example you can see that this edge is near to this place, but this edge is far away from this edge. Clear?
So means that the plane is at certain angle, and these rays of sight will hit that plane, and there will be angle formed between the plane and rays of sight. क्लियर? इसकी समझ आई है कि ये प्लेन किस तरह एंगल पे है. इसका एक एज देखे तो एक एज इस ऑब्जेक्ट के क्लोजर है और दूसरा एज जो है वो ऑब्जेक्ट के फार अवे है. मींस कि अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह, ये प्लेन था तो ये प्लेन अब इस तरह है ऑब्जेक्ट की. ठीक है ना? ये प्लेन था पहले इस तरह था, अब ये प्लेन जो है थोड़ा इस तरह है. मतलब एक एज क्लोज है और दूसरी एज ऑब्जेक्ट से फार अवे है. ठीक है ना? सो आगे मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा भी लास्ट में, तो वहां से और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. सो अब आपको देखिए कि हर एक पॉइंट जो है वो पिक्चर प्लेन पे आ रहा है. तो जब आप इन सब पॉइंट्स को सीक्वेंस से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो इमेज बनेगा. दैट इज नोन एज oblique projection. One more thing you have to remember, that in orthographic projection the image form will be of same size as that of the view. जो व्यू में जो इसकी लेंथ है इस उसमें प्रोजेक्शन में और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, दैट विल बी सिमिलर, सेम साइज के होंगे. ये हाइट भी सेम होगी. अगेन इन दो पॉइंट के दरमियान जो हाइट है वो भी सेम होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगी. ठीक है ना? सो इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द इमेज फॉर्म विल बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. while in orthographic projection you can see that now this चूंकि ये प्लेन जो है वो एट सर्टन एंगल है, सो दिस लेंथ विल बी व्हाट. क्या आपके जहन में आता है क्या हो सकता है? फिर मैं बताता हूं आपको. ज्यादा होगा सर. ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा सर. ज्यादा होगा. ज्यादा किस तरह ज्यादा होगा? होगा सर. बच्चे कम होगा देखिए. सर. हाँ सर ये शायद जब सर दीवार पर पड़ता है सर तो बच्चे वो दूसरी ज्यादा होता एग्जाम्पल, है वो ना, दूसरी सर. एग्जाम्पल है. दीवार को आप टिल्ट मिल्ट नहीं कर सकते. दीवार तो अपनी जगह पे, वो आगे आ रहा है. ठीक है ना? अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखें. अगर मैं इसके इस एज को, ये जो ये वाला एज है, इसको मैं अवे करता हूं, ठीक है ना, तो ये लेंथ क्या होगी? आपके जहन में क्या ख्याल आता है? आप टेक्निकली सोचे जरा इसको. सेम रहेगी सर. सेम किस तरह डिक्रीज होगी रहेगी? सर. हाँ, डिक्रीज होगी. डिक्रीज. डिक्रीज होगी. देखें इधर, इसको देखें. ये आपके पास लेट से यहाँ पे ये एक मैं आपको किस तरह एग्जांपल दूं, बोर्ड भी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन नजर नहीं आ रहा. समझ आ गई है. अच्छा आप इसको देखें ना, इसको इमेज करें, इमेजिन करें. ये जो मैं आपको, यार इधर देखो, सुनो, ये एज है ना, ठीक है ना, इस एज को जो है अगर मैं अवे कर दूं, मतलब इस ऑब्जेक्ट से अवे कर दूं और ये एंड फिक्स हो, मींस रोटेशन ऑफ इस प्लेन को मैं रोटेशन दूं अबाउट दिस एक्सिस, तो इसको मैं जितना अवे करता जाऊंगा तो ये इमेज क्या होता जाएगा? छोटी होती जाएगी. छोटी होती जाएगी. और इसको अगर मैं करीब करता जाऊं तो फिर क्या होगा? बड़ी हो जाएगी. फिर बड़ी हो जाएगी, बड़ी. क्योंकि ये एज उस तरफ जाएगी तो ये लेंथ थोड़ी इसकी बढ़ जाएगी. सो इट बेसिक कहने का मकसद ये है कि इन oblique projection the image form will not be of same size. It will be smaller or larger depend on the type of rotation or the type of angle you are giving to this plane. समझ आई? इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आप किसी भी कोई भी एक पेश लो और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखो और लाइट दो उसको, ठीक है ना, तो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ के उस पेज पे आएगी. अब उसके पेज के एक एंड को आप फिक्स रखो और दूसरी एंड को आप थोड़ा एंगल पे करो, तो देखो उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहेगी. ठीक है ना? लेंथ उसकी चेंज होती रहेंगी और वो लेंथ बढ़ती है कम होती है, वो डिपेंड करता है आपके एंगल ऑफ रोटेशन पे. क्लियर?
यस सर। Now, this is the another example. In this scenario, it is already mentioned that object between observer and plane. So it means that this is the object, this is the plane, and this is observer. So object is, this is the object. So object is in between plane and observer. And in this scenario, you can also see that this plane is at certain angle. This edge is closer to this end and this edge is far away from this end, thus making a certain angle with the object. Now these projectors are projecting the plane at certain angle and image will be formed. So this type of projection is known as oblique projection. Clear? यस सर। At this stage you just understand that what is difference between orthographic projection and oblique projection. Our main focus will be orthographic projection. The third one is perspective projection. Now two scenarios are also in this perspective projection. The plane is in between observer and what? बताए ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। Object. और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर। तो इसमें अगर आप देखें तो ये एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है ना, और इधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस सिंगल पॉइंट से आप इस सारे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस प्लेन पे, ठीक है ना। देखिए सारी रेज ऑफ लाइट्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल स्टेशन पॉइंट and that are hitting the plane and image will be formed. So this type of projection is known as perspective projection. Now the size of this image will also depend upon the movement of this picture plane or the distance between these. If you move this plane towards station point, what will happen? बताएं। Sir, image size will decrease. Image Yes, sir. size Decrease. डिक्रीज होगी। Yes, sir. The image form will be decreased. इंक्रीज नहीं होगी। थोड़ा सोचे ना। हाँ, क्या होगा? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने कहा है कि अगर ये प्लेन को, ये सिनेरियो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है ना, अगर इस पिक्चर प्लेन को स्टेशन पॉइंट की तरफ मूव किया जाए तो ये जो प्रोजेक्शन है, इस ये पिक्चर बन रही है, इसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? Yeah, I think decrease होगा. डिक्रीज होगा। मेरे हिसाब से तो इंक्रीज होगा। इस दूसरी एग्जांपल को देखें तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन स्टेशन पॉइंट और ऑब्जर्वर एंड प्लेन। नाउ इन दिस सिनेरियो अगर ये प्लेन अवे मूव करता है, ठीक है ना, तो साइज क्या होगा? Increase. इंक्रीज होगा, Increase. ठीक है ना। तो इस अगर एग्जांपल को, प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो जो भी आपकी आंख के करीब एक चीज को नजदीक लेकर आए, ठीक है ना, तो उसका साइज बढ़ता है कि कम होता है? इंक्रीज होता है सर। इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी आंख एक स्टेशन पॉइंट है, सारी रेज ऑफ लाइट्स जो है वो इस जगह से आ रही हैं, ठीक है ना, या इधर आके पड़ रही हैं। तो आप जितना एक ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाता है उसको, वो आपको इतना छोटा नजर आता है। तो ये प्लेन भी जितना इसके करीब होगा जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मतलब स्टेशन पॉइंट जो है वो पीछे जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर जो है वो क्या होगा?
साइज रिड्यूस होता जाएगा, डिक्रीज, अब बदल ठीक है ना? I think you have clearly understand that what is difference between orthographic projection, oblique projection, and perspective projection. I am going to repeat it again. If the rays of sights are projector that are hitting the picture plane perpendicularly, so it will the projection performed will be known as ऑर्थोग्राफिक orthographic projection. If the rays of sights are projectors that are at certain angle to the picture plane, the image form will be known as oblique projection. And if you are going to project it from a single station point to a picture plane, the projection performed will be known as perspective projection. Uh, Shape representation method. Now you can define the shape of any object by using two fundamental shape methods. Let me turn off the camera so that आपका लेक्चर जो है वो और भी स्ट्रीमिंग में मसला ना आए. अच्छा, two fundamental methods of shape representations are used. The first one is orthographic view and the second one is pictorial view. Or no, now orthographic view is same orthographic projection. If you are going to take different views using orthographic projection, this that will be orthographic views. These consist of a set of two or more separate views of an object taken from different directions, generally at right angle to each other and arranged relative to each other in a definite way. अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपके सामने है, ठीक है ना, फ्रंट पे पड़ा हुआ है, तो आप उसका फ्रंट व्यू ड्रा करते हैं, ये एक व्यू हो गया. अगर आप उसको साइड से देख के व्यू ड्रा करते हैं तो वो साइड व्यू होगा, ठीक है ना. और लेट से आप एक कमरे में खड़े हैं, ठीक है ना, आप एक कमरे में खड़े हैं, कमरे की 6 फेसेस हैं, आप खड़े हैं और ऑब्जेक्ट एक पड़ा हुआ है, तो उसको फ्रंट पे जो आपको नजर आ रहा है वो आप फ्रंट प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं. जब राइट साइड से देखते हैं तो उसको प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे प्लेन पे, जब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो उसको दूसरे प्लेन पे. इस तरह टॉप को, बॉटम को और रियर व्यू को. तो आपके पास 6 मुख्तलिफ व्यूज आते हैं एक ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना. सो ऑर्थोग्राफिक में भी आपके पास टू से ज्यादा व्यूज हो सकते हैं. टू से ज्यादा कितने व्यूज हो सकते हैं? देयर कैन बी 6 डिफरेंट व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यूज, and they are taking from different six different direction because you have to take perpendicular, ठीक है ना. और ये सारे के सारे का जिस तरह एग्जांपल है, कमरे के सारे जो प्लेन्स है, दीवारें हैं, छत है, दे आर एट 90 degree to each other. So similarly these orthographic views are also taken from different direction and they are generally at right angle to each other and arranged to each other in a definite way. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो और आपको कहा गया हो कि आप इसके 6 डिफरेंट व्यूज बनाएं, ठीक है ना. क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एग्जाम का एक क्वेश्चन है और आपके पास पेज है 2 डायमेंशनल, आपको बनाने हैं 6 व्यूज. तो 6 व्यूज आपके, अगर आप 3 डायमेंशनल में देखें तो आपका एक व्यू एक प्लेन पे बनेगा, दूसरा व्यू दूसरी प्लेन पे बनेगा, तीसरा व्यू तीसरी प्लेन पे, एंड सो ऑन. जो आगे है भी आपको और भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज में समझाना चाह रहा हूँ. तो आप उसको एक सिंगल पेज पे किस तरह लेकर आएंगे, आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा व्यू मैंने कहाँ पे बनाना है, उसके नीचे कौन सा व्यू बनाना है, साइड पे कौन सा व्यू बनाना है, और टॉप व्यू कहाँ बनाना है, बॉटम व्यू. सो ये सारे के सारे व्यूज जो है उसको हम एक डेफिनेट वेज पे अरेंज करते हैं, जो कि आगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स बाद आ रही हैं. आपको वहीं पे मैं आपको ये डेफिनेट वे का समझाऊंगा कि किस तरह आपने उस व्यूज को जो है वो अरेंज करने हैं. जस्ट आप ये यहाँ पे याद रखें कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में 2 या 2 से ज्यादा व्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से ली जाती हैं, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. अच्छा, each view shows the shape of object for a particular view direction and collectively view describe the object completely. Orthographic projection is used. अच्छा, इसका कहने का मकसद ये है कि अगर लेट से अगर आपको मेरी पिक्चर विजिबल है,
कैन यू Yes, sir. सी मी? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ये मोबाइल है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है ना, ये फ्रंट पे पड़ा हुआ है, तो फ्रंट पे आपको क्या नजर आएगा? फ्रंट पे आपको इसकी ये लेंथ नजर आएगी, ये वाली हाइट नजर आएगी, और ये जो आर्क बना हुआ है ये नजर आएगा। एंड अगेन यू विल, चूंकि स्क्रीन ब्लैक है तो आपको इसके फ्रंट का कैमरा नजर नहीं आएगा इधर, लेकिन एक्चुअली अगर आपके सामने पड़ा हो तो आपको इस कैमरे की डायमेंशंस भी नजर आएगी। But in this frontal view, you do not know about the thickness of this mobile. Clear? Yes, sir. या फ्रंटल Yes, व्यू sir. पे आपको इसकी जो बॉटम की डिटेल्स है, जहां पे प्लग लगता है चार्जर वाला या जैक वाला, सो ये डिटेल्स आपको नहीं पता। या फ्रंट व्यू में आपको इसके जो बैक व्यू में जो कैमरास हैं वो नजर नहीं आते, उसकी लोकेशन नजर नहीं आती। सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारे पास जो है वो एक व्यू सफिशिएंट नहीं होता। फ्रॉम वन व्यू यू कैन नॉट गेट द maximum information. Clear? So you must have more than one view. Let's say अगर आपके पास टॉप व्यू है तो टॉप व्यू में आपको इस मोबाइल की थिकनेस नजर आ जाएगी। साइड व्यू है तो साइड व्यू से आपको इसके जैक की डिटेल और प्लग इन वाली डिटेल सारी नजर आ जाएंगी। सो यू मस्ट हैव मोर देन वन व्यू in order to describe the object completely. So for that purpose we use orthographic projection. Clear? Yes, sir. अच्छा, now coming toward pictorial view. Pictorial view किसको कहते हैं? Pictorial view हम आप सिंपल अल्फाज में याद रखें, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ओब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें जो भी शेप्स बनती हैं उसको हम पिक्टोरियल व्यूज कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यूज को भी हम पिक्टोरियल कह सकते हैं। पिक्टोरियल व्यू अगर उसकी शेप आपके सामने हो और अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप कहें पिक्टोरियल व्यू है, ठीक है। अगर ओब्लिक है तो भी इसको आप पिक्टोरियल कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव है तो भी पिक्टोरियल कह सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ओब्लिक को कोई और नाम देंगे तो वो भी गलत है, और ऑर्थोग्राफिक को भी और नाम देंगे तो गलत है, ठीक है ना। अगर लेट से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दी हुई है और उसमें आपको कहा गया कि कौन सी प्रोजेक्शन है और उसमें नीचे ऑर्थोग्राफिक नहीं है और पिक्टोरियल का ऑप्शन है तो वो ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू दी गई हुई है और आपको ऐसे ऑप्शन कहा गया है कि चूज मोर देन वन ऑप्शन, तो उसमें पिक्टोरियल व्यू भी आता है और ऑर्थोग्राफिक व्यू भी आता है। क्लियर? मींस ये ऊपर जितने भी हमने व्यूज देखे हैं, ऑल यू कैन से देम दीज आर द पिक्टोरियल व्यूज। बट अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि पिक्टोरियल व्यूज में ये कौन सा व्यू है, सो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट इट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्लियर? Yes, sir. Okay, principal planes of projection. As you have already learned from engineering drawing and graphic theory that we in engineering drawing and graphic we have two basic principal planes. The first one is vertical plane and the second one is horizontal plane. The vertical plane is also represented by VP and horizontal plane is represented by HP. When these vertical plane and horizontal plane intersect each other at right angle, clear? So a common line will be formed, a line of intersection will be formed in between these two planes. This line of intersection is known as reference plane or XY plane. Clear? Now, due to intersection of this vertical plane and horizontal plane, we will get four quadrants. The first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. I will go back to that slide. Principal plane of projection. Vertical plane, you know that vertical plane is used for projection of frontal view. Acha, frontal view is also known as elevation. Clear? फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी कहते हैं। अगर मैं कहीं फ्यूचर पे आगे आपको एलिवेशन का वर्ड यूज करूं तो एलिवेशन का मतलब होगा फ्रंट व्यू।
horizontal plane is used for the projection of top view, and top view के लिए हम एक another term use करते हैं, that is known as, किसी को पता है, एलिवेशन, और एक दूसरा लफ्ज है यार मेरे जहन से भी, अभी जहन में था, अभी निकल गया, सब्र करें एक मिनट। प्लान, PLAN, प्लान, प्लान भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो फ्रंटल व्यू के लिए एलिवेशन एंड टॉप व्यू के लिए प्लान, PLAN, प्लान, प्लान कह दे, प्लान कह दे, प्लान, ठीक है ना। So these horizontal and vertical plane intersect each other at right angle and creating a line of intersection known as reference line. This intersection create 4 quadrant. यहां तक क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? Clear, sir. Acha, good. Now we will move toward next topic that is interesting, and whenever you will deal any person during your internship or in job, and that job or internship is related to engineering drawing and graphic, the first question they will ask you from engineering drawing and graphic is, what is different between first angle projection and third angle projection. So I am going to explain first angle of projection and third angle of projection. After the end of these slides, you will be able to understand in detail that what is first angle and third angle projection, and how you are going to project the object, and what is the order of your projection, means how you are going to arrange your views in a definite order. So आगे आप लोग जरा एहतियात से गौर से देखें. Now let's start with फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना. इसमें चूंकि थर्ड एंगल पहले दिया हुआ है तो इसको ही डिस्क्राइब करते हैं. थर्ड, अच्छा ये थोड़ा इसको आप जहन में रखें, ठीक है ना. दैट इज फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फ्रंटल व्यू यहाँ से दिया है, मींस फर्स्ट एंगल से, ठीक है ना. इट मे नॉट नेसेसरी दैट दिस मस्ट बी फर्स्ट, दिस इज सेकंड, third quadrant and fourth quadrant. The order may change. You can also give it first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. And you will always see it from the फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है. फ्रंटल व्यू फिर यहाँ से हो जाएगा, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे. इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे आपको आखिर में एक दूसरी सिचुएशन दिखाएंगे जिसमें ये क्वाड्रेंट्स थोड़े उन्होंने मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट दिया, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. सो इसमें आपने आपको कंफ्यूज नहीं करना, उसके लिए आसान तरीका आगे है. जस्ट अभी आप जहन में रखें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड. अच्छा, थर्ड एंगल में पहली निशानी, इसकी कोई एक सिंगल देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन दैट व्हाट इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स आर definitions, and if you combine all of them you will get complete definition of third angle projection. So the first point is that in third angle projection the object will be in third quadrant. याद रखें, मैं आपसे आगे पूछूंगा. The object is in third quadrant. समझ आ गई? Now the person is standing from here, you are going to look, you are looking from here, ठीक है ना, and the object is in third quadrant. That is the first point. The second point is that there is a plane between observer and object. ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दूसरा पॉइंट है कि इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देयर विल बी अ प्लेन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. ये दूसरी निशानी है, ठीक है ना. थर्ड वन, चूंकि देयर इज अ प्लेन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, सो दिस प्लेन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट होगा तो तब जाके हम इसके जो फ्रंटल व्यू है इस प्लेन पे ड्रा कर सकेंगे. ये तीन पॉइंट की समझ आ गई? सर कौन सा प्लेन ट्रांसपेरेंट होगा सर? ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन है. देखें, प्लेन जब भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान हो तो वो जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. लेट से आप प्लेन ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, तो आप उसकी प्रोजेक्शन किस तरह करेंगे?
यस सर ठीक है। 3 पॉइंट मैं फिर रिपीट करता हूँ। इन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, द the the plane of projection is in between object and observer. This plane of projection is transparent. एंड द फोर्थ पॉइंट जो कि आप गौर से देखें, जब आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो इसका मुझे अब आप लोग थोड़ा आंसर दें, ठीक है ना, आप लोग भी इंगेज हो। जब इसको हम यहां से देखते हैं तो इसका फ्रंटल व्यू किस प्लेन पे बनेगा? क्विकली आंसर दें। वर्टिकल प्लेन पे सर। वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। गुड गुड। अब ये बताएं कि ये फ्रंटल व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन से अबव बनेगा या बिलो बनेगा? बिलो बनेगा। बिलो Below, sir. बनेगा सर। बिलो बनेगा, ठीक। अच्छा, इसका टॉप व्यू कहां बनेगा? एबो एबो रेफरेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन सर। हॉरिजेंटल Horizontal प्लेन plane. पे बनेगा। हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा, ठीक है ना? क्लियर? ये देखिए नीचे इधर डिस्क्राइब हुआ है, ये इसका फ्रंटल व्यू बन रहा है और ये इसका टॉप व्यू बन रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ये 2 डिफरेंट प्लेन पे बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 डिफरेंट प्लेन पे बन रहे हैं और इनको हमें रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पे, ठीक है ना? तो उसके लिए हमारे पास तो इस तरह नहीं है, पेपर में इस तरह तो नहीं होता कि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हो उस पे एक बनाते हो, वर्टिकल प्लेन लेते हो उस पे बनाते हो, ठीक है, और आप उस तरह सबमिट करते हो। नहीं, आप एक 2D प्लेन पे वो व्यूज बनाते हो, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक जो पॉइंट है समझने की वो ये है कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेशन देनी होती है और हम उसको रोटेट करके अलाइन करते हैं विद वर्टिकल प्लेन के, ठीक है ना? तो जब हम इसको रोटेशन करके वर्टिकल प्लेन से अलाइन करेंगे तो ये टॉप व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के साथ अलाइन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम इस डायरेक्शन में भी रोटेशन दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ रोटेशन देंगे, मींस क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, तो ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक दूसरे पे आ जाएंगे, तो एक खिचड़ी सी बन जाएगी, ठीक है ना? लेकिन अगर हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, जिस तरह इधर देखें, समझ आगे आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, तो ये टॉप व्यू ऊपर आ जाएगा एंड दीज 2 व्यूज विल बी अलाइन, ठीक है ना? सो आप हमेशा याद रखें, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ऊपर भी रोटेट कर सकते हैं, नीचे भी। अब आपने जो मेन पॉइंट है वो आपने ये याद रखना है कि हमेशा आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेशन इस डायरेक्शन में देनी है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्लोज हो जाए। क्या हो जाए? क्लोज। सर इसका मतलब क्या है? क्लोज। हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू के लिए सर ये ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा होगा सर? ऑब्जर्वर कहाँ से देखेगा सर ऑब्जेक्ट को? ये जो तीर का निशान बना हुआ है मैं उस वक्त से लगा हुआ FV, फ्रंटल व्यू, मींस ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है ना। और मैं फर्स्ट स्टार्ट के जो स्लाइड्स में ही मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको कहा है कि द प्लेन इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जर्व प्लेन ये है तो ऑब्जर्वर जाहिर है यहाँ पे खड़ा होगा ना। सॉरी टू से दैट आपने थ्योरी की इतनी क्लासें ली हुई है, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि ऑब्जर्वर कहाँ है और ये कहाँ है, तो ये सारी चीजें आप किस तरह कर पाएंगे बच्चे? मींस फिर आपको उधर कुछ समझ नहीं आ रही, इसका तो ये मतलब है। मैं स्टार्ट से ही लगा हूँ, 50 मिनट मेरे इस पे ज़ाया हो गए। हालांकि ये इतना कोई मुश्किल लेक्चर नहीं है, मैं अभी तक 14वें स्लाइड पे पहुंचा हूँ और एक एक चीज़ें 3-3 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये सिनेरियो है, इसमें अगर आप देखें तो प्लेन जो है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान है। इसका क्या मतलब है दरमियान में? मीन्स ऑब्जेक्ट ये है, दरमियान में प्लेन है, तो जाहिर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ होगा ना। नहीं सर, मेरा मतलब था कि सर ये ऑब्जर्वर जो है सर ये क्वाड्रेंट में खड़ा होगा सर कि नहीं क्वाड्रेंट से बाहर खड़ा होगा सर?
ये इस तरफ खड़ा हुआ है, क्वाड्रेंट से बाहर खड़ा है, क्वाड्रेंट में खड़ा कर दो लेकिन क्वाड्रेंट से बाहर है। ये जस्ट खड़ा नहीं होता, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि आप इमेजिन करो कि आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ओके सर, थैंक यू सर। किसी और का कोई जो एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन पूछें, जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछें, लेकिन एक चीज में 5 दफा इंग्लिश में भी उर्दू में भी बता देता हूँ, और फिर जब आप दोबारा पूछते हैं तो इसका मतलब है कि पीछे जितना मैंने कोशिश की है तो मुझे नहीं लगता कि आपने गेन की है, ठीक है ना। क्वेश्चन किसने क्या किया था? अच्छा चले, शर्म के मारे वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, जो भी है ठीक है ना। ये याद रखें कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम रोटेशन देते हैं इन सच अ मैनर दैट सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को आपने इस तरह रोटेशन देनी है कि दैट विल बी इन लाइन विद वर्टिकल प्लेन। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ये दोनों व्यूज जो है वो मतलब दोनों व्यू इन लाइन हो जाएंगे, एक पेज पे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये है कि आपने इस एग्जांपल से देखा कि इन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टॉप व्यू इज ऑलवेज अबव द फ्रंट व्यू। क्लियर? Yes, sir. सर हम सेकंड और चार फोर्थ पॉइंट्स एंगल हमें प्रोजेक्शन क्यों नहीं लेते सर? जी सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं लेते हम? सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं लेते? तो अगर हम सेकंड में लें, फॉर एग्जांपल आप देखो ना, सेकंड में आ गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट सेकंड में पड़ा हुआ है। क्लियर? समझ आ रही है? यस सर। तो अगर आप उसको इधर ही से देख रहे हो तो फ्रंटल व्यू इधर बनेगा, टॉप व्यू इधर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको रोटेशन देंगे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को तो वो जो दोनों हैं वो दोनों कोलैप्स होके सेम फेस पे आ जाएंगे। सही है सर। ओके सर वो और फिरोज चूंकि शाह सर तो बच्चे आपकी जो भी कंसर्न्स है वो ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो किसी की वो ना करें, ठीक है ना। क्लास के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आपने जो कहना है वो कहें। क्लियर? ओके सर। नाउ कम टू इसको थर्ड और फर्स्ट क्यों कहते हैं? ये तो एक ये भी है कि चूंकि जिसने भी ये मेथड बनाया है उसको पता है कि उसने फर्स्ट और थर्ड का नाम इसलिए दिया कि फर्स्ट और थर्ड। अब हम ये भी कहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम इस तरह रोटेशन क्यों देते हैं कि सेकंड और फोर्थ क्लोज हो, क्योंकि उसने एक मेथड आपको बताया हुआ है, हम उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड वहाँ पे ये फॉलो भी हो रहा है। तो आप इसको फिलहाल ये समझें इसको कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये इसको रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट एंगल की सारे पॉइंट्स मुझे खुद बतानी है। अब आपको इतनी समझ आई होगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सो मैं रिपीट करता हूँ, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो पहला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या ठीक है। देयर इज अ प्लेन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। थर्ड पॉइंट जो है वो प्लेन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। और चौथा पॉइंट जो है कि टॉप व्यू हमेशा अबव आता है फ्रंट व्यू के। ये चार पॉइंट आप हो गए, इसको हम कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब आते हैं Yes, sir. फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के, ठीक है ना। तो पहला इसका क्या पॉइंट होगा? Object lies in first quadrant. ऑब्जेक्ट विल लाई इन क्वाड्रेंट द में होगा सर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल क्वाड्रेंट। लाइव इन बिटवीन। ऑब्जेक्ट विल बी इन बिटवीन क्या? Observer पूरा and जुमला, plane. ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर एंड प्लेन, प्लेन। ठीक है। ये दो हो गए। थर्ड क्या होगा? प्लेन फेक होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। प्लेन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। क्लियर?
चौथा, सर टॉप व्यू नीचे बनेगा। हाँ, अब वो किस तरह बनेगा उसको देखें। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका टॉप व्यू इधर हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि ये हॉरिजेंटल प्लेन इस तरह मूव करेगी कि ये सेकंड और फोर्थ जो है वो क्लोज होगा। तो जब सेकंड और फोर्थ क्लोज होगा तो ये टॉप व्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो फ्रंट व्यू अबव है और टॉप व्यू बिलो है। तो एक चीज आप नोट करें, आपने थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में चीजों को गौर से देखी तो आपने फर्स्ट एंगल में सारे के सारे खुद ही आंसर किए। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब हम आते हैं जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब हम आते हैं 6 प्रिंसिपल व्यूज की। यहाँ पे तो हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात की, अब हम आते हैं 6 डिफरेंट व्यूज की, ठीक है ना। तो 6 डिफरेंट व्यूज के लिए 6 प्रिंसिपल व्यूज। The object can be entirely surrounded by a set of 6 transparent planes, each at right angle to 4 adjacent to it. इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आप एक कमरे में खड़े हो और उस कमरे की दीवारें समझो ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेन्स हैं, या आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को एक शीशे के बॉक्स में बंद किया हुआ है या रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके 6 फेसेस हैं उस जो शीशे के बॉक्स के। तो यू कैन गेट 6 डिफरेंट व्यूज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। So the box is in a transparent, the object is in a transparent box in, अच्छा, अगर हम फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड लें तो उसमें क्या सिनेरियो हो सकता है? उसमें सिनेरियो ये हो सकता है कि उस ऑब्जर्वर को भी इस बॉक्स के अंदर खड़ा होना होगा और ऑब्जेक्ट को और दरमियान में रखना होगा अपने और प्लेन के, तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो कर सकेगा। और उसके लिए आपके जो प्लेन्स हैं वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर टू यू? यस सर। अच्छा, थर्ड एंगल में हमने कहा था कि एक निशानी ये है कि प्लेन विल बी इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। सो इन दिस सिनेरियो ऑब्जर्वर को कहां पे खड़ा होना चाहिए? इनसाइड द आउटसाइड द बॉक्स। क्लियर? आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है ना। अब हम इस सिनेरियोस को देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप फ्रंट एंगल थर्ड एंगल को देखें तो थर्ड एंगल में प्लेन ये है, ऑब्जेक्ट ये है और बंदा यहां से देख रहा है, ठीक है ना। क्लियर? तो ये एक निशानी ये भी है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कि जो बंदा जिस तरफ से देख रहा है तो व्यूज उसी तरफ बन रहा है, ठीक है ना। वो यहां से देख रहा है तो फ्रंट व्यू यहीं पे बन रहा है, टॉप से देख रहे हैं तो टॉप व्यू इधर ही बन रहा है। जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को अगर आप देखें तो फर्स्ट एंगल में बंदा यहां से देख रहा है और व्यू जो है वो उसके अपोजिट साइड पे बन रही है, उसी फेस पे नहीं बन रही, अपोजिट फेस पे बन रही है, ठीक है ना। इसी तरह टॉप से देख रहा है तो उस टॉप से यहां से देख रहा है और उसका व्यू अपोजिट तरफ बन रहा है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखें, एक निशानी ये भी है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल के दरमियान। अब वापस आते हैं इस पे। अच्छा, ये आपको दिखाया गया है कि ये बंदा जो है वो फ्रंटल, एफ बी से मुराद ये है कि फ्रंटल व्यू इस डायरेक्शन से, ठीक है ना। मतलब वो एफ बी से मुराद ये कि ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यहां से मुराद ये नहीं कि बॉक्स के बाहर से, यहां से मुराद ये है कि ये यहां से फ्रंट को देख रहा है, ठीक है ना। फ्रंट यहां पे है, फ्रंटल व्यू। अब चूंकि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपने कहा था कि ऑब्जेक्ट विल बी इन बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर विल बी इनसाइड द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स। फर्स्ट एंगल में इनसाइड होगा।
इनसाइड। तो कंसीडर करें कि वो ऑब्जर्वर जो है वो बॉक्स के अंदर खड़ा है और ऑब्जेक्ट जो है उसके सामने है। तो फ्रंट व्यू में जब वो देखेगा तो उसका व्यू अपोजिट साइड पे ये बनेगा। एग्री? Yes, sir. अगर वो यहां खड़ा होके देखेगा ये रियर साइड को, तो उसका रियर व्यू इधर बनेगा ये। तो मैं इसको थोड़ा और भी साफ कर देता हूं। इन सब व्यूज की आपको समझ आई कि ये सारे व्यूज बने। फ्रंट से देखा तो फ्रंट का व्यू जो है वो इस प्लेन पे देखा, रियर का देखा तो उसका व्यू अपोजिट साइड पे बना। अच्छा, लेफ्ट से देखा तो लेफ्ट का व्यू राइट साइड पे बना, राइट से देखा तो राइट का व्यू लेफ्ट साइड पे बना, टॉप का देखा तो वो बॉटम पे बना और बॉटम व्यू जो है वो टॉप प्लेन पे बना। पहले तो मुझे कंफर्म करें कि इस चीज की आपको फर्स्ट एंगल की समझ आ गई कि 6 व्यूज किस तरह आए। Yes, sir. ठीक है ना? नाउ वी विल टॉक। अगर आपको इसकी समझ आती है तो आप फिर आगे थर्ड एंगल की भी आप मुझे खुद आंसर कर सकते हैं। तो गौर से देखें। अब चूंकि ये 6 डिफरेंट प्लेन्स पे हैं, नाउ वी विल सी दैट हाउ यू विल अरेंज देम इन अ डेफिनेट वे। ठीक है ना? अब इन सबको आपने एक पेज पे लाना है। ठीक है ना? उस पेज के लिए ये नहीं है कि आपने बॉक्स बनाना होगा और ये करना होगा, नहीं, ये तरीका जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आपके पास 2 से ज्यादा व्यूज हैं, 3 व्यू हैं, 4 हैं, ये 5 हैं, ये 6 आपसे मांगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू कहाँ पे मैं बनाऊंगा और किस पोजीशन पे बनाऊंगा। क्लियर? नाउ देखते जाएं आगे क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमने कहा था फ्रंट व्यू हमेशा एबाव होता है टॉप व्यू। तो ये जो फ्रंट व्यू वाला पोर्शन है इसको अपनी जगह पे रहने दे। टॉप व्यू नीचे आएगा, तो ये जो नीचे टॉप व्यू लिखा हुआ है ये वाला, तो ये प्लेन जो है इसको हम 90 डिग्री पे अलाइन करेंगे विथ फ्रंट व्यू के साथ। समझ आ रही है? ये जो प्लेन था ना इसको हमने ओपन करके बॉक्स के डब्बे को नीचे से उसके प्लेन को अलाइन कर दिया विथ फ्रंटल व्यू। सिमिलरली हम टॉप वाली एज को भी ओपन करके अलाइन कर देंगे विथ फ्रंटल व्यू। तो देखें, फ्रंट व्यू अबव है, टॉप व्यू बिलो है और फ्रंट व्यू से ऊपर बॉटम व्यू है। क्लियर? अब सबसे पहले चूंकि जब फॉर एग्जांपल इसको अगर आप डब्बा कंसीडर करते हैं तो डब्बे के ऊपर 2 ढक्कन हमने खोल दिए। अब ये वाला फेस पहले हमने इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करके आप रियर व्यू के साथ जो है वो अलाइन कर देंगे और फिर इस एज को जो है वो रोटेट करके फ्रंट व्यू वाले प्लेन के साथ अलाइन कर देंगे। रह गया ये लेफ्ट व्यू, तो लेफ्ट व्यू को हम इस तरह अलाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके आपने 6 व्यूज बनाने हैं यूजिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सो फ्रंट व्यू अगर आप बना लेते हैं तो उसके नीचे ही आपने टॉप व्यू बनाना है, उसके ऊपर बॉटम व्यू बनाना है। उसका जो लेफ्ट व्यू है वो राइट साइड पे बनेगा, ये राइट साइड है और लेफ्ट व्यू है, और जो राइट व्यू है वो लेफ्ट साइड पे बनेगा और राइट व्यू के साथ रियर व्यू बनेगा। ये आपका एक डेफिनेट वे है कि इस वे से आपने चीजें बनानी हैं। क्लियर? Yes, यस sir. सर। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अब आगे चीजें आपको इंटरेस्टिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और समझ भी आएंगी। ठीक है ना? तो ये डब्बे भी इन्होंने हटा दिए। ये आपको बता रहा है कि अगर आप फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू से नीचे टॉप बनेगा। अच्छा, ये भी नहीं है कि फ्रंट व्यू यहाँ पे बनाया तो टॉप व्यू आपने यहाँ पे बनाया, नहीं, आपने इनलाइन बनाना है। अगर आप देखें तो ये जितने भी प्लेन आप मूव करते हैं तो ये सारे के सारे देखें इनलाइन बनते हैं एक दूसरे के साथ, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है कि ये फ्रंट व्यू इधर है तो राइट व्यू थोड़ा ऊपर है। ये आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आपको मैं समझाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट आप यहाँ पे याद रखें कि पोजीशंस क्या होंगी ये व्यूज की फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में।
आते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। अब ये थर्ड है, अब इसको देखें और मुझसे क्वेश्चन करें कि क्या हो रहा है। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा 1-2 मिनट आप इसको देखें, पढ़ें इसको, समझे कि क्या हो रहा है। मैं इस लाइंस को भी हटा देता हूँ, रेड लाइंस को। जब समझ आ जाए तो मुझे बता दें। सर वही चीज जो आपने बताई थी कि जिस तरफ से हम लोग देखेंगे उसी तरफ उसकी इमेज फॉर्म होगी। हाँ, एक तो ये फर्स्ट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है सब थर्ड कुछ। एंगल प्रोजेक्शन है, तो ऑब्जर्वर आउटसाइड द बॉक्स होगा, ठीक है ना। और जहां से हम देख रहे हैं वहीं पे बनेगा। आप देखें, मैं यहां से देख रहा हूं तो फ्रंटल व्यू इसी प्लेन पे बनता है। इस बैक साइड से रियर व्यू से देख रहा हूं तो रियर व्यू रियर प्लेन पे बनेगा। राइट व्यू राइट से देख रहा हूं तो राइट व्यू राइट साइड पे बनेगा। लेफ्ट पे देख रहा हूं तो लेफ्ट व्यू, सो ऑन, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है कि फ्रंट व्यू को अपनी जगह रहने देना है, ठीक है ना। हमने टॉप व्यू प्लेन को मूव करके ऊपर लेकर आना है। अब देखें इसको, टॉप व्यू ऊपर आ गया, बॉटम व्यू का प्लेन नीचे ओपन हो के नीचे की तरफ आ गया। जो रियर था वो रियर वाला राइट के साथ आ जाएगा और लेफ्ट वाला उस तरफ चला जाएगा। तो अब इसकी पोजीशंस देखें। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने कहा था कि थर्ड एंगल में टॉप व्यू इज ऑलवेज अबव द फ्रंट व्यू। क्लियर? यस सर। तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू से ऊपर टॉप व्यू होता है और फ्रंट व्यू के नीचे बॉटम व्यू होता है। लेफ्ट व्यू लेफ्ट पे ही होता है, राइट व्यू राइट पे, और राइट के साथ रियर व्यू। अच्छा, ये चीजें कोई इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप इसको जहन पे, एक तो ये है कि अगर आप टेक्निकली लेक्चर पे समझे तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फिर भी याद नहीं होता तो आप याद रखें कि आप फ्रंट व्यू को दरमियान में लें, लिख लें 1-2-3 दफा कि फर्स्ट एंगल में अच्छा, द सिक्स व्यू इन वन प्लेन। ये जो इसमें एक दिया हुआ है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आप फ्रंट व्यू ले, फ्रंट व्यू से ऊपर एबाव, क्योंकि टॉप व्यू है, टॉप व्यू अबाव है तो बॉटम व्यू इसका नीचे होगा। और फ्रंट के साथ राइट से देखें तो राइट व्यू होगा, लेफ्ट लेफ्ट एंड सिमिलरली। और अगर आपको थर्ड याद हो जाता है तो आप फ्रंट को उसका अपोजिट ले लें, कि आप फ्रंट फर्स्ट एंगल के अपोजिट ले लें। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू जो है वो उसके नीचे टॉप व्यू होता है और बॉटम व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। और जो लेफ्ट व्यू है वो राइट साइड पे और राइट व्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की क्या ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन इन सेवरल पॉसिबल पोजीशन। इन जनरल द सिंपलेस्ट पोजीशन शैल बी यूज्ड। The object shall be positioned in such way so that principal faces lies perpendicular to each vision. ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप कंसीडर करें इसका सिंपलेस्ट फेस, इसका सिंपलेस्ट फेस कौन सा हो सकता है, तो उससे स्टार्ट करें। फिर आप इसके ऐसे फेसेस लें फ्रंट टॉप साइड कि वो जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। जैसे ये फेस और ये फेस परपेंडिकुलर है, ये फेस और ये वाला फेस परपेंडिकुलर है। अगर आप देखें तो ये भी इसका एक फेस है, बट दिस फेस इज नॉट परपेंडिकुलर विद दिस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आपने हमेशा वो वाले फेसेस लेने हैं जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। The second thing is selection of view. It is important to choose the combination of views that will describe the shape of object in best and most economical view. वही कि जो आपने ऐसा व्यू ले, ऐसे व्यू से ना स्टार्ट करें कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो और स्टार्ट ही में आप जो है वो ये कह बैठे कि यार ये तो मुश्किल है, नहीं बन रहा। हमेशा थोड़ा टाइम दें, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, और उस शेप को समझें। उसके बाद उसका जो आसान सा फेस है, ठीक है ना, उससे स्टार्ट करें। ओनली 2 व्यूज आर नेसेसरी। आमतौर पे हमारे पास जो है वो 2 व्यूज रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जब आपको
दो या दो से ज्यादा या जितने भी व्यूज का कहा गया हो तो फिर आपने वो बनाने हैं। अननेसेसरी व्यूज शैल बी अवॉइडेड, और वो न्यू व्यूज जो अननेसेसरी हैं उसको अवॉइड करें। अननेसेसरी से क्या मुराद कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यहां से देखें या यहां से देखें, ठीक है ना, तो वो शेप सेम बनती है, ठीक है ना, या टॉप से देखें या बॉटम से देखें, उसमें एक आध लाइन की फर्क आएगी, वो बाद में आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसे व्यूज के जो कि आप उसको एक साइड से भी देख रहे हैं सेम बन रहा है और दूसरे साइड से भी देख रहे हैं तो सेम बन रहा है, तो उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। व्यू स्पेसिंग, ये कहता है कि स्पेस आप इस तरह दें कि उनके दरमियान जो है वो स्पेसिंग बराबर रहे। जिस तरह ये देखें, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो ये स्पेसिंग है वो सेम है, ठीक है ना, क्लियर। सो थोड़ी सी डिफरेंस क्यों लग रहा है बीच में डिस्टेंस जो है? जी? जो लेफ्ट पे बन रही है इमेज, जो नीचे बन रही है, वो थोड़ा सा फर्क है ना उनके डिस्टेंस में? फर्क है, ये तो पिक्चर है ना, आप जब बनाओ फर्क हो भी सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये दरमियान में हो, लेकिन आपने यूनिफॉर्मिटी रखनी है। इस तरह नहीं है कि मतलब आप इसको बहुत ज्यादा उस तरफ ले जाएं, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल आप इसको मतलब कर सकते हैं, इसको दरमियान में डिस्टेंस दे सकते हैं। अब चूंकि एक पिक्चर है, वो कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सही है ना। देखिए, view spacing is necessary to so that drawing balance within the space provided। अच्छा, ये स्पेसिंग भी इसलिए दी जाती है कि इसको मैं इसके बहुत करीब से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन जब आप स्पेसिंग देंगे तो क्लियरली पता चलेगा कि दरमियान में कुछ नहीं है, ये अलग व्यू है, ये अलग व्यू है, ये अलग व्यू है। तो आप अगर इस एग्जांपल को देखें, ये जो आपके सामने ये शेप बनी हुई है और जो 50 की डायमेंशन है, इस तरफ से अगर आप फ्रंट को देखें तो आपको फ्रंट व्यू में क्या नजर आएगा, ये इसका फ्रंटल व्यू है, ये 50 लेंथ नजर आएगी, ये 10, ये 20, जब इसको आप ड्रा करेंगे तो ये आपके पास ये शेप आ जाएगी। अच्छा, फिर इसको हम ये आप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझाने के लिए था, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ देखता हूँ वीडियो हो जिससे आपको आसानी से समझ आए कि किस तरह हम चीजें बनाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या मैं वीडियोस शेयर कर दूंगा कि आप लोग ये देख लें और कुछ फिगर्स फिर दूंगा कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? आज का जो सेशन